Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of Daily News Analysis. Today is 16th of July 2024 and I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. So first of all, we are going to discuss some questions based on previous day session. कल एक स्टूडेंट ने पूछा सर कल के डीएनए में कुछ क्वेश्चंस मिसिंग थे, देयर वाज सम इशू. सो क्वेश्चन बंद नहीं होंगे, वो क्वेश्चन चलते रहेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट. एंड आई होप दैट एवरीबडी इज एंजॉयिंग द डीएनए and enriching their knowledge and also making some notes and doing some extra efforts on their own self. So first of all, we have a question. Recently, a former president of USA was attacked to kill. He was addressing a rally in. उनकी रैली कहाँ पे हो रही थी? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की. सो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है. मैं इसका आंसर आपको नहीं दूंगा, आप गूगल करिए और फाइंड आउट कीजिए. प्लस यहीं से फिर आपके लिए एक क्वेश्चन और है मेरे पास. द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड आउट दैट यूएसए का अभी रिसेंटली यूएसए का इंडिपेंडेंस डे गया है जुलाई में ही, और यूएसए में कितने स्टेट्स हैं ये आप पता कीजिए. हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन यूएसए, और उसकी कैपिटल तो वॉशिंगटन आपको पता ही होगी. जैसे इंडिया में स्टेट्स हैं, यूनिट टेरिटरीज हैं, वैसे ही यूएसए में भी बहुत सारे स्टेट्स हैं. वो आपको पता करने हैं कि कितने स्टेट्स हैं, जैसे कि पेनिसिल्वानिया, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, बहुत सारे स्टेट्स हैं. So this was the extra efforts you have to make. Now we are going to have another question. The FBI is an investigation agency of which country? अभी एक केस को FBI इन्वेस्टिगेट कर रही है. That who was the person behind that assassination attempt? I hope अब आपको हिंट भी मिल गई कि ये FBI एजेंसी कहाँ की है. चलो मैं आपके लिए क्वेश्चन दे देता हूँ कि इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको वर्ल्ड में इंटेलिजेंस का हीरा, इंटेलिजेंस का डायमंड कहा जाता है. उसका नेम आपको बताना है. और आपको रसिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका भी आपको नेम बताना है कमेंट्स में. प्लस इंडिया की कौन सी एजेंसी है उसका भी आपको नेम बताना है कि विच वन इज द एजेंसी ऑफ इंडिया, दैट इज इंटेलिजेंस एजेंसी विच इज इन्वॉल्व्ड इन द एक्सटर्नल intelligence collection, gathering, counterterrorism, and etc. Now we have another question. The question is that who has become the Prime Minister of Nepal? Because जो recent Prime Minister थे नेपाल के, उनकी गवर्नमेंट का डाउनफॉल हो गया because they were unable to prove their majority in their parliament. So now there will be another PM, and this PM is very infamous for India and Nepal relations. Whenever this person has been the Prime Minister of Nepal or in the leadership position, there has been downfalls in the relations of India and Nepal. So that person is again come back to the politics of Nepal, and there are various thinkers which are thinking and analyzing that what could be the next level of relations between India and Nepal. So this person is KP Sharma Oli. This person is now the PM of Nepal. Another question, what was the Cold War? Yesterday's session हमने उसमें कोल्ड वॉर को लेकर के कुछ पॉइंट्स आपके साथ में डिस्कस किए थे, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि वर्ल्ड लेवल पर जो डेमोक्रेसीज हैं उनका क्या पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है. सो यू हैव टू एक्सप्लेन दैट व्हाट इज कोल्ड वॉर. यू कैन राइट इट इन कमेंट्स बॉक्स. Another is what is Freedom House and it is located in which country? कल हमने इस पर भी बात की थी. फ्रीडम हाउस किसी एक कंट्री का थिंक टैंक है जो टाइम टाइम पे अपनी कुछ रिपोर्ट्स को पब्लिश करता रहता है कि व्हाट इज द पैटर्न ट्रेंड ऑफ डेमोक्रेसी फ्रीडम एट द ग्लोबल लेवल. Another question, democracy index is published by, there is a institution and which is very famous for its publication of democracy index, which is to calculate, which is to assess the democratic setups of every country around the world. And of course there may be some countries which are not part of that report, but overall this democracy index is very famous, so you can expect some questions based on this report in your upcoming examination. Another question,
International Institute of Democracy and Electoral Assistance is located in which country? This is recently, and in our last day session we also used some data based on the report of this institutional इंस्टीट्यूट फॉर ये जो इलेक्टोरल असिस्टेंस वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी रिपोर्ट की भी हमने कल बात की थी, जो शशि थरूर का एक एडिटोरियल आर्टिकल आया था उसके रिगार्डिंग में। सो आपको ये भी बताना है कि ये किस कंट्री का एक इंस्टीट्यूट है। अनदर क्वेश्चन, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज एंड द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर 1996 वर रिटन बाय। ये बुक पब्लिश हुई थी 1968 में और ये बुक पब्लिश हुई थी 1996 में। और ये वर्ल्ड की जो हम अगर बात करें डेमोक्रेसी की, गवर्नमेंट की, स्टेट की, पॉलिटिक्स की, थिंकिंग की, सोसाइटी की, सिविलाइजेशन की, इंटरनेशनल अफेयर्स की, तो उसमें ये दोनों ही बुक बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और कल इन दोनों के राइटर का नेम यूज़ किया था शशि थरूर साहब ने, जब वो बात कर रहे थे कि कोल्ड वार और स्पेशली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द वर्ल्ड एक्सपीरियंस्ड थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी। आई होप यू कैन रिकॉल दैट वर्ड कि थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी आई, और उसके लिए उन्होंने उस राइटर का नेम यूज किया था जिसने ये दोनों बुक्स लिखी हैं। और इनकी सबसे ज़्यादा फेमस बुक है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें वर्ल्ड की सोसाइटीज में जो हम बार बार वर्ल्ड वॉर्स देखते हैं, ऐसे इश्यूज हमें जो देखने को मिलते हैं। सो यू कैन फाइंड आउट इट्स राइटर in the article of yesterday. So this question is again for you and I'm not going to give you answer. देखो, मैं आपको आंसर्स कुछ क्वेश्चंस के इसलिए नहीं बताता हूँ, मैं होप करता हूँ कि आप अपनी तरफ से थोड़ा गूगल पे जाएंगे, कुछ सर्च करेंगे। जब आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, 4 नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। और जीएस का अपना कॉन्सेप्ट है या स्टडी की अपनी जो टेक्निक होती है वो होती है कि यू शुड हैव योर क्यूरियोसिटी। उसके बेसिस पर जब आप कुछ नया सर्च करते हैं, नई चीज़ों को सीखते हैं, सो दैट विल मेक strong your network of knowledge. So that is the all about GS. So now we are going to discuss today's current affairs. So just start with the first one. Supreme Court to hear petitions against passing laws as money bills. देखो इशू क्या है, मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। इशू यह है कि जब भी लोकसभा या राज्यसभा दोनों में कोई बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उस बिल की डेफिनेशन दैट इट विल बी अ मनी बिल और नॉट, दिस डेफिनेशन इज अंडर द डिस्क्रिप्शन और द अथॉरिटी ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अब कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट्स ऑफ द डे जो होती है अपने ऐसे कुछ बिल्स को मनी बिल के फॉर्मेट में पास करवा लेती हैं, और मनी बिल के रिगार्डिंग में जो राज्यसभा है उसके पास बिल्कुल ना के बराबर पावर होती है। सो जब उनके पास में राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं होती और वो उसको वहां पास नहीं करवा सकते, तो ऐसे बिल्स को गवर्नमेंट क्या करती है, लोकसभा में लेकर के आती है और एज ए मनी बिल उसको पास करवा लेती है। यू नो द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल हैज बीन गिवन अंडर द आर्टिकल 110, और वहां पर इसमें कहा गया है कि मनी बिल वो होगा जिसमें ओनली एंड ऑल ऐसे जो प्रोविजंस होंगे जो फाइनेंस से डील करते हों, अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी की बात करते हो फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या टैक्सेशन की बात करते हो। अब हुआ क्या है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पास में पिटीशन गया कि सर जो पार्लियामेंट है या गवर्नमेंट है वो बहुत सारे टाइम पर ऐसा करती है कि मनी बिल की फॉर्मेट में बिल्स को पास करवा लेते हैं और स्पीकर उसको मनी बिल का जो है नाम दे देते हैं और वो बिल पास हो जाता है, और जो राज्यसभा है उसको बाइकआउट करके, उसको बाईपास करके अपने बिल को पास करवा के उसको एक्ट बना लिया जाता है। सो सुप्रीम कोर्ट अब इसकी जो है एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, तब जाकर के इस पर फाइनल डिसीजन आएगा। इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल यूज किया है द फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017,
आधार एक्ट 2016 बोला ये बिल भी वैसे ही थे जिनको मनी बिल बना करके पास किया गया था। सो इस पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आएंगी जब इस पर डिसीजन आ जाएगा। हाँ, यहाँ से आपको याद करने की क्या चीज है कि मनी बिल की डेफिनेशन कहाँ पर है। आपको मनी बिल और फाइनेंस बिल दोनों में थोड़ा डिफरेंस देख लेना है। आर्टिकल 110 में बहुत सारे जो है मैटर्स हैं, प्रोविजंस हैं दिए गए हैं जो मनी बिल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एट एमपीज भोजशाला कॉम्प्लेक्स बिल्ट यूजिंग टेम्पल रिमेन्स ASI। भोजशाला, देखो ये एक स्ट्रक्चर था और मध्य प्रदेश का एक धार डिस्ट्रिक्ट है वहां पर है। इस पर एक डिस्प्यूट चल रहा है कि ये मंदिर है या मस्जिद है। सो हुआ क्या, इस पर एक ASI ने अपनी एक रिपोर्ट प्रिपेयर की, इसका असेसमेंट किया, इसका सर्वे किया और उसमें जाकर के उनको कुछ ऐसे प्रूफ्स मिले जिसके बेसिस पर उन्होंने अपनी जो 2000 पेजेस की एक रिपोर्ट फाइल की है बिफोर दी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अब वहां पर उसमें दोबारा से केस चलेगा, ये तब जाकर के डिसाइड होगा कि वहां पर किस कम्युनिटी को इस पर राइट्स मिलेंगे। इसका मैं आपको अगर बेसिक से फैक्ट्स बताऊं इस रिपोर्ट के रिगार्डिंग में, तो उस रिपोर्ट में जब उसका सर्वे किया गया तो उसके अंदर बहुत सारे पिलर्स हैं जिन पर गणेश जी की प्रतिमाएं हैं, ब्रह्मा की प्रतिमाएं हैं, नरसिंह की हैं और भैरव की प्रतिमा हैं, गणेश जी और उनके जो साथ में हैं देवियां हैं उनकी हैं, बहुत सारे ह्यूमन के पिक्चर्स हैं, एनिमल्स के पिक्चर्स हैं। सो यहाँ से इनका ये कहना है और ये सच्चाई भी है कि इस्लाम में ऐसी किसी भी प्रतिमा का होना, किसी पिक्चर का होना असंभव है, क्योंकि वहां पर किसी पिक्चर, किसी प्रतिमा का हमेशा अगेंस्ट में होता है, उसको वो पूजते नहीं है, उसका कोई रेस्पेक्ट नहीं है। सो किसी भी मस्जिद में अगर ऐसी चीज आपको मिल रही है तो वो मस्जिद तो नहीं होगी अगर उसके हम बैकग्राउंड में जाकर के देखेंगे। तो यहाँ से इनको ये कहना है इस रिपोर्ट का कि अब इसके बेसिस पर जो केस होगा वो कंटिन्यूअस होगा। सो यहाँ से मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बताना चाह रहा हूँ कि जब भी स्टडीज होती हैं, सो स्टडीज में आपको रैशनल रहना होता है। आप जब भी लीगल करियर में अपने में होंगे और वहां पर अगर आपने स्टडी को बायस्ड होकर के स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट मींस अपने केसेस को आपने बायस्ड होकर के पढ़ना स्टार्ट किया, तो आपकी नजर फिर उन फैक्ट्स पर नहीं जाएगी, उन लॉजिक्स पर नहीं जाएगी जिन पर जानी चाहिए। और उन लॉजिक्स, उन फैक्ट्स, उस साइंटिफिक टेम्पर की वजह से जो आज हम बड़े बड़े लॉयर्स देखते हैं, जजेस देखते हैं, वो उन पदों पर इसलिए है कि उन्होंने लॉजिक का यूज किया, ना कि किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन को लेकर के वो चले। सो इन अ लीगल करियर आपको हमेशा क्या रहना होगा, लॉजिकल रहना होगा, तब आप उन चीजों को आगे अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर दोनों ही पक्ष के आर्गुमेंट्स को आपको देखना होगा कि उनके पास में क्या आर्गुमेंट्स हैं और अदर के पास में क्या आर्गुमेंट्स हैं। जैसे इसमें बेसिक जब ASI ने सर्वे की बात की, जो हिंदू पक्ष था इस केस में, उन्होंने ये कहा कि देखो साहब, ना हमारी बात मानिए आप, ना हमारे अपोजिशन मुस्लिम कम्युनिटी की आप बात मानिए। आप क्या करो, इंडिया का जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इससे एक सर्वे करवाइए आप इसके इंटरनल स्ट्रक्चर का, उसकी वीडियोग्राफी करवाइए, उसकी पिक्चर्स वगैरह अरेंज करवाइए, फिर उसमें देखिए कि क्या इसमें फैक्ट निकल करके आते हैं। तो इस चीज का, इस सर्वे का विरोध किया अपोजिशन ने, जो ये कह रहे थे कि वहां पे मस्जिद है, मॉस्क है। सो इसका विरोध किया कि नहीं साहब, सर्वे मत करवाइए आप, ठीक है। इन्होंने फिर भी सर्वे किया बेस्ड ऑन द ऑर्डर फ्रॉम द हाई कोर्ट ऑफ MP। और सर्वे के बाद जब ये डिटेल निकल करके आई है तो यहाँ से थोड़ा क्लैरिटी देखने को मिल रही है कि ऐसे केसेस सर्वे साइंटिफिक चीजों के बेसिस पर सॉल्व होने चाहिए, ना कि किसी की मान्यताओं के बेसिस पर कि हमने मान लिया कि वहां पे मंदिर है, दूसरे बोले वहां पे मस्जिद है, थर्ड पार्टी बोले यहाँ पे चर्च है, फोर्थ बोलेगा वहां पे कोई गुरुद्वारा है या कुछ भी है या कुछ भी नहीं है। तो उन सबका एक सर्वे, साइंटिफिक सर्वे होना चाहिए और उसके केस बेसिस पर केसेस का डिसीजन होना चाहिए। अब तो साइंस इतनी आगे निकल गई है
टेक्नोलॉजी इतने आगे चली गई है कि कोई भी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर तक रडार के बेसिस पर उसके अंदर के स्ट्रक्चर तक का पता लगा लिया जाता है कि उसके अंदर क्या है। सो नेक्स्ट चलते हैं अपन, बिग ब्रदर टू ब्रदर अ नेपाल इंडिया रीसेट। हम कल बात कर रहे थे कि अभी नेपाल में वहाँ की पॉलिटिकल चेंजेस आए हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको बताया भी था कि आने वाले टाइम में इंडिया और नेपाल पर आर्टिकल्स आएंगे। और आज एक बड़ा सा आर्टिकल ये है और एक आर्टिकल और भी था, तो मैं जॉइंट में करके एक ही आर्टिकल के बेसिस पर इंडिया नेपाल का क्या इशू है और क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको मैं एक ही जगह पे यहाँ पे डिस्कस करूंगा। सो इस आर्टिकल को मैंने पॉइंट वाइज, इसके की पॉइंट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया है नीचे के पॉइंट्स में। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल के बेसिस पर। यहाँ मेरे कोई वर्ड नहीं होंगे, मेरा कोई आइडिया नहीं होगा, ओनली जो इस आर्टिकल में है हम उसी को डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल में सबसे पहले बात करते हैं कि देखो इंडिया नेपाल के जो रिलेशंस में डाउनफॉल आया वो 2015 में आया। और जैसे आज 2024 में उधर नेपाल में केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर हैं, इधर इंडिया में मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। उस समय पर भी वही कंडीशन थी। दोनों के बायलैटरल रिलेशंस में एक टर्बुलेंस आया, तूफान जैसा आया, और वो 2015 में आया। उसका इश्यू क्या था? उसमें इश्यू था कि नेपाल ने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और इंडिया का अपना उसमें इश्यू था कि नेपाल का जो तराई रीजन है उसमें एक कम्युनिटी रहती है जिसको हम बोलते हैं मधेसी, मींस वहां की प्लेन एरिया में रहने वाली कम्युनिटी है। इंडिया चाहता है कि उनके जो बेसिक राइट्स हैं उनका भी रेस्पेक्ट हो। इंडिया का ये कहना था कि नेपाल अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन में मधेसी पीपल के राइट्स को भी एक्सेप्ट करे, उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर वगैरह को भी रेस्पेक्ट करे। अब इस सब के लिए इंडिया ने उन पर थोड़ा प्रेशर भी बनाया। नेपाल के बहुत सारे लीडर्स उस ड्यूरेशन में जब इंडिया में आए विजिट करने, न्यू दिल्ली आए, तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉमिस भी किया था कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आपके जो सजेशंस हैं, आपके जो कंसर्न्स हैं उनको भी रखेंगे। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, उन्होंने अपनी पसंद का ही कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया और उसको फाइनल कर दिया। अब उस इस सब को देखते हुए हुआ क्या कि इंडियंस, ऐसा ब्लेम होता है कि इंडिया ने एक ब्लॉकेड कर दिया, मींस नेपाल के लिए जो सप्लाई जाती थी गैस सिलेंडर्स, पेट्रोल, डीजल, उस सब को रोक दिया अराउंड 6 मंथ्स के लिए। उस ड्यूरेशन के बाद इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में बहुत ज्यादा डाउनफॉल आया। अब जब ये डाउनफॉल आया तो देखो नेपाल को भी एक चांस मिल गया, केपी शर्मा ओली को। वो जाकर के बैठ गए चाइना की गोदी में और उन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट्स साइन कर लिए चाइना के साथ में। मींस जो नेपाल कंटिन्यूसली इंडिया के साथ में था, उसने इंडिया वर्सेस चाइना का प्ले कार्ड खेला और चाइना के साथ में अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग किया। फिर उसके बाद में ये कुछ एग्जाम्पल्स यूज करते हैं कि इंडिया और नेपाल के जब ऐसा इशू आया ब्लॉकेड वाला, तो केपी शर्मा ओली ने कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान अपने दिए, जैसे उन्होंने कहा कि भाई जो अयोध्या है, ओरिजिनल अयोध्या, वो इंडिया में नहीं, वो नेपाल में है, वो नेपाल में होती थी। एक बयान और इन्होंने दिया कि भाई इंडिया जो कहता है, इंडिया के जो ऑफिशियल लोगो वगैरह हैं हमारे, उसमें लिखा रहता है सत्यमेव जयते। तो ओली साहब कह रहे थे कि भाई आपके में इसको हटा दो आप, और आपका तो जो सीन चल रहा है वो चल रहा है सिंहमेव जयते, बोला शेर की विजय होगी, जो एग्रेसिव लोग होंगे उनकी विजय होगी। तो नेपाल ये कहना चाह रहा था कि इंडिया के अगेंस्ट में, जो नेपाल के अगेंस्ट में इंडिया अग्रेसिव है, सत्य की जीत की बात वो नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है सिंहमेव जयते, मींस माइट इज राइट। तो ऐसा इनडायरेक्ट कमेंट उन्होंने किया। फिर उन्होंने क्या किया कि जो लिम्पायदुरा और काला पानी का रीजन है इंडिया और नेपाल का बॉर्डर एरिया, उन्होंने उसको नेपाल के नए वाले मैप में दिखा दिया, जो कि इंडिया का रीजन है, उसको नेपाल में दिखा दिया और कंट्रोवर्सी बढ़ गई। उन्होंने इस रीजन को नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में शो करने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया प्रॉपर, और उसमें इस रीजन को दिखा दिया। तो हमारे इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस थे वो और ज्यादा डाउन हुए।
प्लस फिर उन्होंने उसी समय पर इंडिया पर ब्लेम लगाए कि आपकी जो एक्सटर्नल अफेयर्स एजेंसी है दैट इज रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वो नेपाल में क्या कर रही है, इंटरवेंशन कर रही है, अंदर ही अंदर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या लोगों को भड़काना, मधेसी रीजन के लोगों को ऐसा कर रही है और हमारे रिलेशन में इशू आया। ठीक है, प्लस उसने ये अपना ब्लेम लगाया कि भाई इंडिया चाहता है कि नेपाल इंडिया की फोटोकॉपी हो, इंडिया की एक इमेज की तरह बन जाए नेपाल, जबकि नेपाल अपने आप में एक इंडिपेंडेंट नेशन है। फिर उन्होंने ये बात कही। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि देखो दोनों ही लीडर्स पावर में हैं और अब यहाँ से हम देखेंगे कि वो क्या चेंज लेकर के आएंगे या कुछ ऐसे एडवेंचर करेंगे। दोनों को ही चाहिए कि वो जो लॉगजेम है हमारे रिलेशंस को उसको सॉल्व करें, और इंडिया को भी ये समझना होगा कि अब नेपाल में मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट नहीं होगा कि हर बात में वो इंडिया की हाँ में हाँ मिलाए, वो ऐसा नहीं होगा। प्लस ये कहते हैं इंडिया शुड अवॉइड इंटरवेंशन। भाई एक पंचशील का सिद्धांत है और इंडिया हमेशा ये कहता है कि नेबरहुड फर्स्ट। तो भाई इंडिया के लिए कह रहे हैं कि इंडिया अब क्या करे, इंडिया शुड ट्राई टू अवॉइड एनी इंटरवेंशन इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ नेपाल। और क्या करे इंडिया, इंडिया अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो करे और उस पर वर्क करे। फिर यहाँ पर ये कहते हैं कि देखो जनरली ये एक आइडिया बना हुआ है इंडिया के लोगों में कि नेपाल तो भाई एक गरीब देश है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल देते हैं, ये कहते हैं कि देखो इंडिया को प्रोग्रेस के थ्रू अपना एटीट्यूड प्रोग्रेस से डिसाइड करना चाहिए, ना कि पावर से। प्रोग्रेस क्या है, मींस अक्लमंदी की बात से, अकल से, रैशनैलिटी से, साइंटिफिक टेम्पर से। उसके लिए एग्जांपल दे रहे हैं कि देखो अगर इंडिया को ये लगता है कि इंडिया की वैल्यू नेपाल के लिए है, मींस ओनली इंडिया इज इम्पोर्टेंट फॉर नेपाल एंड नेपाल इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया फाइनेंशियली, तो ये कहते हैं कि नेपाल इज द 7th लार्जेस्ट रेमिटेंस सोर्स फॉर इंडिया। मींस बाहर से जो पैसा इंडिया में आता है उसमें 7th लार्जेस्ट नंबर पर आता है। और नेपाल के साथ में जो रिलेशंस हैं, इंडिया का जो प्लेन रीजन है, हिंदी हार्टलैंड है, उस रीजन में बहुत सारा जो बिजनेस है, ट्रेड है, यूपी बिहार और इन रीजन में नेपाल से चलता है। बहुत सारे लोगों का वहां पर लिवलीहुड चलता है नेपाल के साथ अच्छे रिलेशंस की वजह से। तो इंडिया को नेपाल का भी रिस्पेक्ट करना होगा। फिर ये कहते हैं कि देखो अभी रिसेंटली पुष्प कमल दहल जो पीएम थे उनकी गवर्नमेंट गिर गई, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो जब वो पुष्प कमल दहल गवर्नमेंट में थे तो इंडिया को खुश करने के लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए, और ये भी कहा जाता है कि पुष्प कमल दहल इंडिया के सपोर्ट से प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है, वो एग्जाम्पल देते हैं कि वो इस बात पर भी एग्री हो गए, इंडिया ने यह कहा कि देखो हम आपसे इलेक्ट्रिसिटी परचेज करेंगे लेकिन उन प्लांट्स से इलेक्ट्रिसिटी हम नहीं लेंगे जो प्लांट्स चाइना की फंडिंग से, चाइना की टेक्नोलॉजी से, चाइना के सपोर्ट से बने हों। वो इस बात पर राजी हो गए। अभी रिसेंटली मोदी की शपथ में भी आए थे, अभी जब रिसेंटली जो है हुई थी जून में, और उनको ये उम्मीद थी कि मेरी गवर्नमेंट इंडिया के सपोर्ट से चलती रहेगी, लेकिन डिड नॉट सर्वाइव। उस पुष्प कमल की दहल की गवर्नमेंट गिर गई। सो यहाँ से ये कहते हैं कि इंडिया शुड सी इट्स लिमिट, इंडिया को अपनी लिमिट्स को समझना होगा कि सारी की सारी गवर्नमेंट वहां पर इंडिया के सपोर्ट से नहीं चल सकती। वो एक इंडिपेंडेंट नेशन है, उसकी अपनी एक अथॉरिटी है। फिर ये कहते हैं कि देखो इंडिया को अब ये भी समझना होगा कि हमने जब नेपाल में इंटरवेंशन किया, ठीक है, तो उसकी वजह से हमको क्या मिला, फेल्योर मिला, वहां की गवर्नमेंट भी गिर गई और हमारे रिलेशंस भी वहां पर जो है डाउनफॉल की तरफ चले गए। फिर ये कहते हैं कि देखो भाई अब एट द एंड दोनों ही लीडर्स हैं, दोनों को ये जो है एफर्ट्स लगाने होंगे कि उनके रिलेशंस ठीक हो जाए। फिर ये कहते हैं देखो जनरल सेंस में जो इंडिया और नेपाल की जो सेटिंग्स हैं, तो ये नेपाल की डिफॉल्ट सेटिंग की बात करते हैं, जैसे कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट बहुत सारी चीजें चलती हैं। सो ये कहते हैं कि नेपाल और नेपाली उन लोगों की और उस स्टेट की जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो टुवर्ड्स इंडिया है।
मीन्स वो हमेशा इंडिया के फेवर में थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि हमारे कल्चरल, आइडियोलॉजिकल, रिलीजियस, शादियां, बहुत सारा रिलेशन हमारा नेपाल के साथ में मीन्स डेप्थ में है। उनकी हमारी जो रूट्स हैं वो एक कहीं ना कहीं जा करके मिल जाती हैं। सो ये कह रहे हैं कि इंडिया को ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि वो पूरी तरह से चाइना के गोदी में जाके बैठ जाएंगे और चाइना ही उनका सारा कुछ डिसाइड करेगा। ये कह रहे हैं कि इस बात से इंडिया को चिंता नहीं करना चाहिए, और इंडिया शुड ऑल्सो कन्विंस इटसेल्फ दैट नेपाल कभी भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा कि फुल्ली वो चाइना के साथ में अपने रिलेशंस को मेंटेन करे और इंडिया को नाराज कर ले। वो ऐसा कभी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, उसको भी अपनी लिमिट्स पता है। सो इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडियन एडवांटेज ऑफ नेपाल एज बफर स्टेट। भाई हमारे लिए भी तो नेपाल का बहुत सारा रोल है क्या? वो कहते हैं कि बफर स्टेट का रोल है नेपाल का। कैसे? अगर नेपाल नहीं होता, हमारे बॉर्डर डायरेक्टली चाइना से कवर होते, तो इतने बड़े बॉर्डर पर हमको अपनी आर्मी, मिलिट्री बहुत बड़े अमाउंट में डिप्लॉय करनी पड़ती, फाइनेंशियली बहुत सारा बर्डन आता हमारे ऊपर। सो नेपाल हमारे लिए एक बफर स्टेट का काम कर रहा है। नेपाल इटसेल्फ सफर्ड माओइस्ट। वो कहते थे को माओइज्म से इंडिया भी परेशान है, और नेपाल में जब जब माओइस्ट को उन्होंने सपोर्ट किया तो उनकी खुद की गवर्नमेंट इससे सफर रही, वायलेंस रहा, बहुत सारी चीजें रही, तो उसको भी हमें थोड़ा सा साइडलाइन करना होगा। फिर कहते हैं कि इंडिया नीड टू एस्टेब्लिश नेपाल स्टडीज। कि भाई इंडिया के लोगों में कई बार ये देखने को मिलता है, जैसे ही नेपाल या नेपाली का वर्ड यूज होता है तो उनको लगता है कि सब गरीब है ना, कमजोर, बस इंडिया में नौकरी के लिए आ रहे हैं, लिवलीहुड के लिए आ रहे हैं। तो बोले ऐसे माइंड सेट को हमें रिसेट करना होगा। और वो कैसे? कि जैसे हमने अदर कंट्रीज के बारे में जानने के लिए अपनी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, जैसे चाइनीज स्टडीज, फ्रेंच स्टडीज, नेपाल जापानीज स्टडीज, ऑस्ट्रेलियन स्टडीज, जैसे हम वहाँ की स्टडी करवाते हैं, ऐसी कुछ बेंचेस, कुछ सीट्स, कुछ यूनिवर्सिटी में कोर्सेज हमको चलाने होंगे जो नेपाल स्टडीज के नाम से हो। तब हम नेपाल को और अच्छे से समझ पाएंगे और वो इंडिया नेपाल के रिलेशंस में हेल्प करेगा। फिर कहते हैं इंडिया शुड रीथिंक अबाउट नेपाल एज नेपालीज। उनको ये मानना बंद करें कि वो पुअर हैं, अनग्रेटफुल हैं। और अल्टीमेटली फिर ये बात करते हैं, जैसा कि इस आर्टिकल का टाइटल था, इंडिया शुड ओनली बी ब्रदर। इंडिया एक भाई की तरह बिहेव करे, ना कि बिग ब्रदर की तरह। दोनों में एक डिफरेंस होता है। जब हम केवल भाई बनते हैं, ब्रदर बनते हैं, बंधु बनते हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को इक्वल मान करके चलते हैं। और जब बिग ब्रदर बनते हैं, तो जो बिग ब्रदर होते हैं, घर में जो बड़े भाई होते हैं, वो हमेशा अपना डोमिनेंस क्रिएट करने की बात करते हैं। मींस बस उनकी बात चलनी चाहिए, और छोटा वाला जो भाई होता है उसको वो हमेशा हमेशा दबा करके रखना चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया नेपाल को इक्वली देखे, उसको ऐसे न देखे कि मैं बड़ा हूं तो उसको हमेशा हम अपने सबसर्वियंस में रखेंगे, सबऑर्डिनेंस में रखेंगे, सब कुछ हमारे इशारे पर होगा। तो उसकी कह रहे हैं कि भाई हमको ये सारी चीजें सॉल्व करनी होंगी और इंडिया नेपाल के रिलेशंस को इम्प्रूव करना होगा। सो दिस वाज द जिस्ट ऑफ दिस आर्टिकल। अब हम कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। इंडिया एंड रशिया हैव डबल्ड रुपी रूबल पेमेंट्स इन 2024। देखो, रुपी इंडिया की करेंसी है और रूबल रशिया की करेंसी है। आप सबको पता है दैट देयर हैज बीन सर्टेन सैंक्शंस बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड अगेंस्ट रशिया ड्यू टू द रशियन अटैक्स ऑन यूक्रेन। सो रशिया की जो इकोनॉमी है, नेगेटिवली इम्पैक्ट उस पर बहुत सारे रहे। अब इंडिया और रशिया ने अपने कुछ स्वैप एग्रीमेंट्स साइन किए दैट आवर बायलैटरल ट्रेड will be conducted in the concerned currencies of both countries। मीन्स रुपी और रूबल से हम अपने ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करेंगे, उसमें डॉलर लेकर के नहीं आएंगे। तो उसमें हमने उसको जस्ट डबल कर दिया है। ये एक बेसिक सा पॉइंट था इसमें। फिर ये बात करते हैं, बिकॉज ये सब आर्टिकल क्यों है कि इंडिया और रशिया की जो अभी मीटिंग हुई है, इंडियन पीएम रशिया गए थे, तो उसके रिगार्डिंग में अभी रिसेंटली क्या होने वाला है कि हमारे 2 ऑर्डर्स थे, एक्चुअली 4 ऑर्डर थे, जो हम वहां से स्टील फ्राइगेट बनवाना चाह रहे थे रशिया से। तो उनमें से 2 हमें बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। और
बाकी 2 देखो इसमें क्या था कि वो हमारे लिए फ्रैगेट्स बनाएंगे, जो युद्धपोत जिनको हम बोल देते हैं, वॉरशिप वगैरह टाइप के जो होते हैं, अटैक वगैरह के काम आते हैं। तो हमने टोटल इनसे 4 बनवाने की बात कही थी कि हम 4 बनवाएंगे। इन 4 में से 2 रसिया अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करके देगा और बचे हुए 2 को हमारी जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है वो यही इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेगी। सो अभी रिसेंट की अगर हम बात करें तो 2 हैं हमारे पास में, तुशील और तमल। इन दोनों को बहुत ही जल्दी मैक्सिमम जनवरी फरवरी 2025 तक इनकी डिलीवरी हो जाएगी। इंडिया से टीम वहां पर जा चुकी है, वो उसकी स्टडी कर रहे हैं, उस पर ट्रेनिंग ले रहे हैं कि उसको इंडिया लेकर के आएंगे। ठीक है, बाकी जो बचे हुए 2 हैं वो इंडिया में ही उनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो एक ये है, तो तुशील और तमल ये 2 जो है फ्राइगेट्स हैं, इनको किसकी हेल्प से बनाया जा रहा है? रशिया की हेल्प से। ये क्वेश्चंस ऐसे कई बार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में विक्रम मिस्री टेक्स ओवर एज इंडियाज 35th फॉरेन सेक्रेटरी। ये इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी बन चुके हैं, फॉर्मली इन्होंने चार्ज ले लिया है। 1989 के इंडियन फॉरेन सर्विस के ये ऑफिसर हैं और पहले भी बहुत सारे असाइनमेंट्स में इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जो अब कंप्लीटली ये क्या है, और इससे पहले ये डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे थे। आपको एक और मैं फैक्ट बताता हूँ, इंडिया की हिस्ट्री में मोस्टली क्या रहा है कि जो भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं वो इंडियन फॉरेन सर्विस के होते हैं, लेकिन पिछले टाइम से हम देख रहे हैं कौन है, एक आईपीएस ऑफिसर हैं, अजीत डोभाल। अदरवाइज इससे पहले कोई आईपीएस ऑफिसर इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं रहा है। आईएफएस जो होते हैं उनको नेशनल सिक्योरिटीज के इश्यूज की बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। आईपीएस ऑफिसर्स इंडिया में मींस जो है डोमेस्टिक लेवल पर काम करते हैं, बहुत सारे ऑफिसर ऐसे भी होते हैं जिनकी इंटरनेशनल समझ बहुत अच्छी होती है, लेकिन इंडिया में इससे पहले कौन थे, जो फॉरेन सर्विस के ऑफिसर थे वही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनते थे। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, व्हेन आई वाज 11 और 12 आई सेड माय ड्रीम वाज टू विन विंबलडन। आप सबको पता होगा कि वर्ल्ड में विंबलडन का नाम है टेनिस के जो है गेम में, और इसके अभी जो विजेता बने हैं वो है मिस्टर अल्काराज। ठीक है, और इस समय का सबसे उभरता हुआ सितारा, जो चमकता हुआ शाइनिंग स्टार अगर कोई है तो ये है मिस्टर अल्काराज। ठीक है, इन्होंने इसमें फिर से अपनी विक्ट्री को जीता है, मतलब जो है रिकॉर्ड किया है, और ये सबसे कम उम्र के पर्सन हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा ये जो टेनिस के जो कप्स होते हैं, जो टूर्नामेंट्स होते हैं, सबसे ज्यादा अपने नाम पे किए हैं। सो कल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अल्काराज कौन है, कहाँ के हैं, विंबलडन कहाँ पे होता है, कैसे कोर्ट पर होता है, इस टॉपिक को मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ एक बार। सो नाउ आप टेनिस के बारे में पहले से ही पढ़ करके आइएगा, कल हम आपसे क्वेश्चन देंगे और उनको आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।